को आप यीस्ट को ग्रो करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आप अज्यूम कर रहे हैं कि यीस्ट विल ग्रो, यीस्ट विल प्रोड्यूस द सेल मास, बट अल्टीमेटली व्हेन यू विल क्लोज द सिस्टम एंड यू विल स्टॉप द प्रोसेस, आपको एंड पे सेल मास के बजाय मिलेगी क्या? एथेनॉल। हो क्या कि यीस्ट ने अचानक से अपना मेटाबॉलिज्म शिफ्ट कर लिया from this aerobic production of cell mass to the ethanol, and this effect would be called Crabtree effect. अगर मैं यहाँ पे यूँ लिखूँ CRAB, Crabtree effect। अच्छा, अब ये Crabtree effect जो है यहाँ पे इस केस में Crabtree effect, this is undesirable because हम प्रोड्यूस करवाना चाह रहे थे सेल मास, एथेनॉल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, दिस इज अनडिजायरेबल। और इस केस में अगर हम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो यहाँ पे हमारे लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड रिसोर्सेज दैट कैन बी वेस्टेड बिकॉज वी आर इंटेंडेड टू प्रोड्यूस द सेल मास, एंड में हमारे पास एथेनॉल प्रोड्यूस होगी, हमारे तो मतलब की चीज प्रोड्यूस नहीं हुई, सो वी हैव टू अवॉइड इट। सो दिस वाज द Crabtree effect। अच्छा, अब ये होता कब है? व्हेन वी प्रोवाइड द एक्सेस ग्लूकोज और द कार्बोहाइड्रेट्स above 3% into the medium, when we provide excess glucose or carbohydrate, in that case yeast क्या करेगा कि aerobic respiration से अपनी respiration switch कर लेगा anaerobic की तरफ, so that would be considered as Crabtree effect and that can be reduced। अच्छा, अब यहाँ तक किसी को कोई मसला हो? ये पिछली क्लास में बात हुई थी। Yes, Kamran, you have a question? Yes, fermentation, vigorous aeration of S cerevisiae strain in the presence of an abundant level of carbohydrate, 3%, that actually results in the metabolic dominance of fermentation, and that is known as Crabtree effect। So this would be, and this is negative with respect to the industrial point। अब इसको अवॉइड कैसे करें? इसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि हम, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मीडियम के अंदर मैक्सिमम कार्बन है या एक्सेस ऑफ कार्बन है, हम इस कार्बन को रिड्यूस कर दें। जब हम मीडियम प्रिपेयर करें तो उस मीडियम के अंदर हम ये ख्याल रखें कि कार्बोहाइड्रेट जो है दैट वुड बी इन अ रिड्यूस्ड क्वांटिटी, एंड दैट रिड्यूस्ड क्वांटिटी दैट वुड बी 0.0001% सुक्रोज ऑफ द होल मीडियम। यहाँ पे स्लाइड के अंदर जो आपको शो हो रहा है, दिस इज 0.0001% सुक्रोज। अगर इतना कम सुक्रोज या ग्लूकोज मीडियम के अंदर ऐड करें तो नाउ यीस्ट इज अनएबल टू शिफ्ट इट्स मेटाबॉलिज्म फ्रॉम दिस टू दिस। ओके, बिकॉज ग्लूकोज बहुत कम क्वांटिटी में मौजूद है, तो यीस्ट को पूरा ग्लूकोज ब्रेक डाउन करना पड़ेगा टू गेट द मैक्सिमम एनर्जी। गॉट इट? गुड। So this is the first technique by the biotechnologists in the food industry that we are avoiding the Crabtree effect। The next one, उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसके लिए बेहतर यह है कि we can use some other organism। You know that yeast are belong from the Saccharomyces cerevisiae as well as Candida utilis। तो Saccharomyces cerevisiae के साथ ये प्रॉब्लम है Crabtree effect का, Candida utilis के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। So we can replace the strain and we can use the Candida utilis that can be used to grow the that is able to grow in the aerobic conditions। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे मैंने मेंशन किया है this Candida utilis that is able under the condition of vigorous aeration and elevated sugar level, no Crabtree effect that is observed in that case। तो अगर ये Candida utilis को हम ग्रो करवाएं even in the presence of excess carbon, in the presence of aeration, in that case even Candida would not shift its metabolism toward the anaerobic, and so that's why this is feasible। So Candida utilis that is commonly being used to convert the lactose in whey production। इंडस्ट्रीज के अंदर नॉर्मली ये इस्तेमाल होती है। इसके अलावा Candida is also being used to convert the sulfide waste liquor into cell mass। This is sulfide waste liquor। there are Candida utilis that is able to grow on multiple waste materials। उसमें सबसे important sulfide waste है। sulfide waste को as a substrate use करके Candida has ability to grow, और Candida जो है वो sulfide waste जब grow करती है तो cell mass बनाती है when we are providing the aerobic conditions। इसके अलावा Candida utilis that is also being involved in the production of fodder। ये fodder क्या होता है? This is termed as a fodder yeast,
Anyone? What is that fodder? फॉडर को शायद उर्दू में चारा कहते हैं, चारा जानवरों के लिए, चारा, फॉडर. So Candida utilis that can be used to produce the that can also be termed as a fodder yeast. तो ये fodder yeast because जब Candida utilis grow करेगी, Candida utilis cell mass बनाएगी, that would be enriched with the protein content. So that can be used as a fodder. एक मिनट, यहाँ तक किसी को कोई मसला मसाइल तो नहीं है जी? क्रैपरी इफेक्ट क्या होता है उसको अवॉइड और हम आगे निकल जाएंगे. That molds are normally they are obligate aerobes and they can be used for the production of certain additives. Excuse me sir. Sir जो yeast है सर ये है और यानी स्पोर्स बनाते हैं. स्पोर्स हम उन स्पोर्स को यूज कर सकते हैं टू इनोकुलेट और नेक्स्ट सिस्टम्स. और इनोकुलेट करने के लिए हमारे जो फर्मेंटेशन सिस्टम्स हैं उनको इनोकुलेट करने के लिए हम मोल्ड्स के स्पोर्स यूज कर सकते हैं. दैट वुड बी easy for use. इसके अलावा there are multiple techniques which are being involved to change the genetic makeup of the microorganisms. और उसमें हम जब किसी microorganism का genetic makeup change करते हैं तो हम उसके साथ word use करते हैं variety, subspecies या biovar का biovariety का word use करते हैं जिसके बारे में familiar है. और इसमें हम यहाँ पे अगर देखें तो हमने already भी इससे familiar है कि हम serotypes, biotypes के words use करते हैं. For example, if we have the organism E. coli और E. coli के किसी जीन को हमने amplify किया है या उसको change किया है from the wild type तो हम use करेंगे E. coli biotype, आगे उसका वो जीन का nomenclature जो भी हमारे पास होगा. तो ये terms कुछ इस्तेमाल होंगी, मैंने इसे यहाँ पे लिख दी है तो you should be very familiar और इसको recall कर लेंगे, हमने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी पढ़ी थी. इसके अलावा दो चीजें आएंगी. जब हम Escherichia coli को abbreviate करते हैं तो हम E. coli लिखते हैं, लेकिन इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा. समटाइम जो प्रोटोजोन है एंड अमीबा कोलाई इसको भी हम E. coli लिखते हैं. तो ये जब भी E. coli का वर्ड लिखा हो दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट मटेरियल कि इधर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटोजोन और वी आर टॉकिंग अबाउट द बैक्टीरिया. तो ये मैंने यहाँ पे दो पॉइंट्स जो थे मैं चाह रहा था कि आपके जहन में आ जाए. सो कमिंग नेक्स्ट, दैट वन इज द मेटाबॉलिक कंट्रोल. we can control the metabolism of an organism to produce our required products. Either these products are the primary metabolites or the secondary metabolites. और इसमें हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारे पास examples मौजूद हैं. For example, we can control the metabolism of microorganisms to produce the citric acid, and citric acid is being produced by the Aspergillus niger. Aspergillus niger. ये Aspergillus niger क्या है जी? This one. Aspergillus niger. Fungus है. Yes, A. niger. Citric acid is being produced by the use of Aspergillus niger. और इसके अलावा glutamic acid जो है that is being produced from a bacterium that is named as a Corynebacterium glutamicum. और जो glutamic acid है इसकी production. अच्छा, अब यहाँ पे दो बातें हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स जो कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए प्रोड्यूस करते हैं. देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स जिसमें अगर दो कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स को डिवाइड करें तो कुछ प्रोडक्ट्स हम एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट कह सकते हैं और कुछ को हम इंट्रा सेलुलर प्रोडक्ट्स कहेंगे. एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट्स जो कि कोई भी सेल जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको प्रोड्यूस करते हुए खुद ही सेल से बाहर एक्सपोर्ट आउट कर देगा. एंड वी डू नॉट नीड टू एक्सट्रैक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल. दिस वुड बी कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट्स. दूसरी टाइप की वो प्रोडक्ट होंगी जो सेल के अंदर प्रोड्यूस होंगी और हमें फर्मेंटेशन यानी कि सेल्स को ग्रो करवाएंगे. अब जब सेल ग्रो करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट बनेगी, वो प्रोडक्ट सेल के इनसाइड बनेगी. तो फिर हमें एक नेक्स्ट एडिशनल स्टेप ऐड करना पड़ेगा जिसमें हम सेल की ब्रेक डाउन करेंगे और अपनी प्रोडक्ट को उसमें से सेपरेट आउट करेंगे. ओके, सो हियर देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स. वन इज कॉल्ड extracellular product or the intracellular product. Extracellular product would be termed as the product that is being produced to the outside of the cell, and intracellular product the product that is being inside the cell. Clear? Okay. तो अब यहाँ पे glutamic acid की बात हम कर रहे हैं. Glutamic acid that is produced by the Corynebacterium glutamicum. लेकिन इसमें मजे की बात यह है कि normally that is produced inside the cell. और इनसाइड द सेल ये प्रोड्यूस होता है और इसकी जो मैक्सिमम यील्ड है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द सेल परमेबिलिटी.
cell permeability, because What the hell with Bilal? भाई वर्कशॉप पे बैठा है। बी सीरियस, मैंने म्यूट कर। ओके, सो मैं बता रहा हूँ कि ग्लूटामिक एसिड जो है, ग्लूटामिक एसिड दैट नॉर्मली प्रोड्यूस इनसाइड द सेल, इसके मैक्सिमम यील्ड के लिए ये ज़रूरी है कि जिस सेल में ये प्रोड्यूस हो रहा है उस सेल की जो परमेबिलिटी है वो ज़्यादा की जाए, ताकि जितना ये सेल के अंदर बन रहा है उतना ही बाहर मीडियम के अंदर आए, क्योंकि हमारे लिए यूजफुल ये तभी है जब ये सेल से बाहर एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगा। क्लियर? तो किसी भी सेल की या Corynebacterium glutamicum की खासतौर पे जो सेल परमेबिलिटी है, that can be changed, that can be enhanced in the presence of biotin deficient medium. Let me repeat my words. असल तो मोबाइल के चक्कर में यूज कर लो। एनीवेज, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हम अभी एग्जांपल डिस्कस करने लगे हैं, आई रिपीट दिस ऑल स्लाइड, वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेटाबॉलिक कंट्रोल। मैं आपको बताने ये वाला हूँ कि वी कैन हैव द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स by controlling the metabolism of an organism. Okay, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने के हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं, जिसमें कुछ ऐसा है कि हम या तो जो स्पेसिफिक एंजाइम है उनको एम्पलीफाई कर दें जिससे हमारी प्रोडक्शन इनहेंस हो जाए, या जो इनहिबिटरी एंजाइम है उनको हम स्लो डाउन कर दें, या हम यूँ करें कि जिस मीडियम के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है उस मीडियम के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स को चेंज कर दें, जैसा कि हमने इस एग्जांपल में देखा कि वी हैव चेंज द न्यूट्रिएंट, हमने 3% से उसकी क्वांटिटी कम कर दी है, जिसकी वजह से हमारे पास अल्टीमेटली प्रोडक्ट जो है हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मैक्सिमम बनना शुरू हो गई है। इसी तरह से एक एग्जांपल हमारे पास ये है कि वी कैन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म बाय लिमिटिंग वन और मोर क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स, वन और मोर क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, अब ये जो वन और मोर क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स हैं, देयर आर सर्टेन क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द मीडियम, और हम उन न्यूट्रिएंट्स को अगर लिमिटेड कर दें, कम कर दें, तो अल्टीमेटली सेल्स की परमेबिलिटी पे, सेल्स के फंक्शन और मोर्फोलॉजी पे इफेक्ट होगा, और हम उसको अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल्स कुछ मेरे पास है, मैं वो एग्जांपल डिस्कस करने लगा था आपके साथ कि फॉर एग्जांपल व्हेन वी प्रोड्यूस द ग्लूटामिक एसिड फ्रॉम द Corynebacterium glutamicum, और इसमें मैंने आपको बताया कि ग्लूटामिकम जो है, ग्लूटामिक एसिड जो है दैट इज प्रोड्यूस इनसाइड द सेल, इसे सेल से बाहर निकालना है, ये हमारा एम है, और सेल से ये बाहर कब आएगा, जब सेल की परमेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो वी कैन इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ सेल बाय प्रोवाइडिंग और बाय ग्रोइंग द सेल ऑन द बायोटिन डेफिशिएंट मीडियम। ओके, जिस मीडियम में सेल ग्रो कर रहे हैं, अगर हम उस मीडियम में बायोटिन को डेफिशिएंट कर दें, तो इस केस में सेल परमेबिलिटी इनहांस हो सकती है। दूसरा तरीका, वी कैन प्रोवाइड द ओलिक एसिड डेफिशिएंसी इन ओलिक एसिड ऑक्सोट्रॉफ्स। हियर यू विल एक्सप्लेन व्हाट आर द ऑक्सोट्रॉफ्स। ऑक्सोट्रॉफ्स क्या होते हैं? एनीवन? ऑक्सोट्रॉफ्स sir, which are unable to produce a specific products are known as exotrophs. Like sir, you are right, लेकिन मुझे यहाँ से भी किसी से पूछने दो, what are the exotrophs? Kamran, what are the exotrophs? No, Javeria, exotrophs? What's that? Exotrophs? Different products या एक से ज़्यादा products. रोहन, exotrophs? आप इसका नाम सुन के इतने हैरान क्यों हो? ये पहले नहीं सुना कभी? Exotrophs are those organisms which are unable to produce a certain component or the nutrient. मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है oleic acid exotrophs. So oleic acid exotrophs would be the organisms which are unable to produce the oleic acid for their cell. तो इन्हें ग्रोथ के लिए oleic acid चाहिए है, but they are unable to produce oleic acid by their cell. So we have to provide oleic acid into the medium. हमें
आर्टिफिशियली इन्हें ओलिक एसिड देना पड़ेगा. दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस द ओलिक एसिड बाय देयर सेल्फ. क्लियर? सो आई रिपीट, वो ऑक्सोट्रॉफ का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता बाय इटसेल्फ. दिस वुड बी कॉल्ड ऑक्सोट्रॉफ. प्रोटोट्रॉफ का मतलब है the organism which is able to construct or produce all the nutrients which are required for its growth. Exotroph. अब यहाँ पे एग्जांपल है oleic acid exotroph. It means that the organism which is unable to produce the oleic acid but it require oleic acid for its growth. तो जब हम ये oleic acid खुद तो प्रोड्यूस कर नहीं सकता, तो फिर हम इसको मीडियम में खुद से oleic acid देंगे. क्लियर? खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा, तो दैट वुड बी ओलिक एसिड एक्सोट्रॉफ. तो इससे एक और तरीके से भी आप बात कर सकते हैं कि ओलिक एसिड एक्सोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म होगा जो ओलिक एसिड के बगैर ग्रो नहीं कर सकता. एम आई राइट? ओलिक एसिड एक्सोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म है जो कि मीडियम में ओलिक एसिड के बगैर ग्रो नहीं कर सकता. एम आई राइट? कॉकब, एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके. इसी तरह से आर्जिनिन एक्सोट्रॉफ, लाइजीन एक्सोट्रॉफ्स की भी जिक्र आता है. आपने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में शायद इसका पढ़ा होगा. एक्सोट्रॉफ्स नॉर्मली होता क्या है कि हम इनके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग से चेंजेस करते हैं. अब ओलिक एसिड एक्सोट्रॉफ वुड बी द दोज ऑर्गेनिज्म जिनकी ओलिक एसिड प्रोडक्शन का जो मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट हुआ होगा. हमने उसको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अफेक्ट किया होगा. नाउ दैट ऑर्गेनिज्म इज अनएबल टू प्रोड्यूस ओलिक एसिड. तो यहाँ पे अब वापस इस एग्जांपल पे आए तो यहाँ पे मेंशन है कि ओलिक एसिड डेफिशिएंसी एंड ओलिक एसिड एक्सोट्रॉफ वी कैन एनहांस द सेल परमेबिलिटी इन केस ऑफ Corynebacterium glutamicum when we will grow the Corynebacterium glutamicum in the oleic acid deficient medium. Clear? मैं कितना रिपीट समझ आई है किसी को? नहीं सर. Yes, you want to ask something? होता है बिल्कुल होता है. उसकी बात करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है जी. भाई ये कौन टाइप करी जा रहा है? मरियम इकराम. ओ अच्छा, मुझे ये जो चैट है ये ऑफ करनी पड़ेगी अगर ये सिचुएशन रही तो. अच्छा जी. हाँ हाँ देखें जी. आई रिपीट दिस ऑल स्टफ. वी आर प्रोड्यूसिंग ग्लूटामिक एसिड. वी आर यूजिंग द ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है Corynebacterium glutamicum. अब ग्लूटामिक एसिड प्रोड्यूस होता है इनसाइड द सेल. हमें उसको सेल से एक्सट्रैक्ट आउट करना है. मैक्सिमम ग्लूटामिक एसिड सेल से बाहर कब आएगा? जब सेल परमेबिलिटी इनहांस होगी. सेल परमेबिलिटी इनहांस करने के मल्टीपल तरीके हैं. एक तरीका यह है कि हम इस Corynebacterium glutamicum ऑर्गेनिज्म को ऐसे मीडियम में ग्रो करें जो कि बायोटिन डेफिशिएंट हो. जिस मीडियम में बायोटिन कम हो तो सेल परमेबिलिटी विल बी एनहांस्ड. दूसरा तरीका यह है कि हम Corynebacterium glutamicum यूज करें वो वाला जो कि ओलिक एसिड एक्सोट्रॉफ हो, और फिर हम उसको मीडियम के अंदर कम ओलिक एसिड देंगे और इसके रिजल्ट में भी सेल परमेबिलिटी विल बी एनहांस्ड. सेल परमेबिलिटी एनहांस करेगी तो सेल के अंदर मौजूद ग्लूटामिक एसिड जो है वो सेल से बाहर आ जाएगा, और ये हम चाहते हैं. तीसरा तरीका यह है कि we will add the penicillin and the saturated fatty acid into the medium. In which medium? In the medium in which Corynebacterium glutamicum is being grown. चौथा तरीका यह है कि we provide the glycerol deficiency in the medium and we are using the glycerol exotroph Corynebacterium glutamicum. These are the four techniques that can be used to enhance the cell permeability to maximally extract out the glutamic acid.
क्लियर? सर ये चारों कंडीशंस लाजमी हैं या हमें सिर्फ अगर एक भी हम इसमें से प्रोवाइड करते हैं तो? जैसे कोई एक, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेन। फॉर एग्जांपल अगर आप स्ट्रेन वो यूज कर रहे हैं जो कि ऑलिक एसिड एक्सोट्रॉफ है, तो उस केस में हम ऑलिक एसिड डेफिशिएंसी देंगे। अगर हम स्ट्रेन वो यूज कर रहे हैं जो ग्लिसरॉल एक्सोट्रॉफ है, तो उस केस में हम ग्लिसरॉल डेफिशिएंसी देंगे। और अगर हम स्ट्रेन दोनों एक्सोट्रॉफ यूज नहीं कर रहे, तो वी कैन गो फॉर द बायोटिन डेफिशिएंसी एंड वी कैन गो फॉर द एडिशन ऑफ द पेनिसिलिन। क्लियर? गुड। यस, सो कमरान सर ये एक्सक्यूज मी, जी जी लास्ट में सॉरी, ये अभी पिछली स्लाइड में हम डिस्कस करके हटे हैं कि वी कैन हैव द मेटाबॉलिक कंट्रोल। और उसकी कैसे मेटाबॉलिक कंट्रोल कैसे है कि हमने खुद ही सेल को एक्सोट्रॉफ बनाया है। अब सेल जिस न्यूट्रिएंट पे डिपेंडेंट हो गया है, हम वो न्यूट्रिएंट थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं, पूरा नहीं दे रहे, जिससे हमें बेनिफिट हो। ठीक है, दिस इज द बायोटेक्नोलॉजी। नाउ देयर आर मल्टीपल म्यूटाजेंस। व्हाट आर द म्यूटाजेंस? डिफरेंट स्टेट्स म्यूटाजेंस। सर जेनेटिक इंफॉर्मेशन के अंदर जो हम चेंज कर देते हैं या ऑल्टर कर देते हैं। Mutagens are the agents which have ability to cause a mutation at a certain position into the DNA, mutagen, and that process that would be called mutagenesis. Mutagenesis. So this topic that is about the mutagenesis for the overproduction of metabolites. We have ability to use the certain mutagens. We have ability to use the certain mutagens to cause the mutations, and these mutations are ultimately for the overproduction of metabolites. इसमें हमारे पास जो तीन इसमें हमारे पास स्ट्रेटजीज इस्तेमाल होती हैं, यूज होती हैं। उसमें सबसे पहली है वी कैन डिलीट द न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि म्यूटाजेंस का इस्तेमाल करते हुए हम सर्टेन न्यूक्लियोटाइड्स को डिलीट कर दें। दिस वन वी कैन सब्स्टिट्यूट द बेस पेयर्स, बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन मॉलिक्यूलर में पढ़ा आपने। तीसरा है जीन डुप्लीकेशन, कि हमारी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हम उसको डुप्लीकेट करवा के उसकी मल्टीपल कॉपीज बना दें। अगर एक कॉपी हमारे पास प्रोडक्ट बना रही थी 10%, तो मल्टीपल कॉपीज जो है उसकी उतनी ही ज्यादा प्रोडक्ट सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। वी कैन हैव थ्री स्ट्रेटजीज। वन इज दैट वी कैन रिमूव द न्यूक्लियोटाइड्स। हम न्यूक्लियोटाइड्स कुछ जो हमारे लिए अननेसेसरी है हम उन्हें रिमूव कर सकते हैं। हम बेस पेयर सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं, हम जीन डुप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसमें याद रखिएगा कि हमें ऐसी स्ट्रेटजी यूज करनी है जिसके रिवर्जन के चांसेस कम हो। बात समझिएगा। होता यूं है कि जब हम जेनेटिक मेकअप के अंदर चेंजेस क्रिएट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और द लिविंग सिस्टम्स, they have ability to revert back the changes, because you know that DNA polymerase 3, DNA polymerase 1, they have the proof reading system, और जिससे चेंजेस रिवर्ट बैक टू द वाइल्ड टाइप हो जाती है, और जिसके रिजल्ट में हमारी सारी की सारी म्यूटाजेनेसिस की जो एफर्ट है दैट विल गो ऑल इन वेन। ओके, तो इससे अवॉइड करने के लिए हमें ऐसी स्ट्रेटेजी यूज करनी है जिसमें रिवर्जन टू वाइल्ड टाइप के चांसेस कम हो। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड डिलीशन और बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन है पहले दो वाली, इसके अंदर रिवर्जन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इससे क्या होगा कि हम एक दफा तो बना लेंगे, हम एक बैच रन करेंगे, अपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, दूसरा बैच रन करने लगेंगे, तीसरे बैच तक जाते हुए वी माइट हैव द रिवर्जन ऑफ दैट स्ट्रेन इनटू द वाइल्ड टाइप। सो वी हैव टू अवॉइड इट। यस देन unnecessary and in this sense I will explain like, देखो कुछ न्यूक्लियोटाइड्स हैं डीएनए में जो कि इनकोड कर रहे हैं ऐसे एंजाइम को दैट इज इनहिबिटरी फॉर आवर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। तो अल्टीमेटली हम अगर न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करवा दें तो ना न्यूक्लियोटाइड होंगे तो ना अल्टीमेटली एंजाइम बनेगा जो हमारे लिए इनहिबिटरी है या जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो वी कैन रिमूव द न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पे एक सेंटेंस है, द म्यूटेंट्स दैट रिजल्ट फ्रॉम Okay, the mutants that result from large deletions have the greatest stability.
तो जितनी म्यूटेशन हमारे पास लार्जर स्केल्स की डिलीशन हो करते जाएंगे हम, वो हमारे पास स्टेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता चला है. फॉर एग्जांपल, यू हैव रिमूव 1 न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, उसके रिवर्जन के चांसेस ज्यादा हैं. यू हैव रिमूव 10 न्यूक्लियोटाइड, उसके रिवर्जन के चांसेस कम हैं. तो जितने डिलीशन का पोर्शन इंक्रीज करते जाएंगे, उतने ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी के साथ हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होते चले जाएंगे. इसके अलावा जी जी सर, लेकिन जितनी ज़्यादा ग्रेटर डिलीशन करेंगे सर, हमारे पास चांसेस ऑफ इफेक्टिव म्यूटेशन भी तो कम हो जाते हैं. लाइक अगर एक बड़ा पार्ट हम डिलीट कर रहे हैं, हो सकता है कि वो 2 या 3 जगह पे एग्जिस्ट करता हो, तो वो अगर इकट्ठा डिलीट हो जाता है ब्लाइंडली हम ब्लाइंडली कुछ डिलीट नहीं कर रहे होते. इस केस में हमें प्रिसाइजली वो पोर्शन डिलीट करना है जो कि हमारी प्रोडक्ट को इफेक्ट नहीं कर रहा, या वो पोर्शन डिलीट करना है जो हमारी प्रोडक्ट को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे ब्लाइंडली हम नहीं कर रहे थे, बड़े प्रिसाइजली कर रहे थे. ओके, सो ये यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा. इसके बाद अगला है हमारे पास अल्काइलेटिंग एजेंट्स दैट आर अमंग द मोस्ट पोटेंट डायरेक्ट एक्टिंग म्यूटाजेनिक एजेंट्स. सो वी आर यूजिंग अल्काइलेटिंग एजेंट्स. अल्काइलेटिंग एजेंट्स जो है ये म्यूटाजेनिक एजेंट्स हैं और ये डायरेक्ट हैं और मोस्ट पोटेंट हैं. और इसके अलावा जो हमारे पास म्यूटाजेनिक एजेंट है, उसके अंदर एनटीजी है, और एनटीजी दे आर एक्चुअली द N-methyl and nitrosoguanidine. और ये करते क्या है कि ये मिथाइल ग्रुप एडक्ट टू ग्वानिन है और ये मल्टीपल म्यूटेशंस कॉज करते हैं. इसके अलावा हमारे पास आता है इथाइल मीथेन सल्फोनेट, ये सिंगल म्यूटेशंस कॉज करने के लिए हम यूज करते हैं. और फिर हमारे पास आती है यूवी लाइट्स, यूवी irradiation, and UV irradiation they usually create more stable mutation in the microorganisms. तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं the mutagens या mutagenesis for the overproduction of metabolite, और इसमें हमने मल्टीपल म्यूटाजेंस के बारे में भी पढ़ा. अल्काइलेटिंग है, एनटीजी है, इथाइल मीथेन सल्फोनेट है और यूवी लाइट, 4 है. और इसमें अल्टीमेट पर्पस क्या है? या तो न्यूक्लियोटाइड डिलीशन है, या बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन है, या जीन डुप्लीकेशन है. क्लियर? यस. यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, कोई मसला, कोई एक मिनट में